Today we have vibrational spectroscopy. In previous lecture, we discussed how to find vibrational modes. Okay, total degree of freedom you can calculate. Total degree of freedom is equal to 3n. N means number of atoms present in your compound. So if you have water is your compound, it means you have 3 number of atoms. Total degree of freedom will be 3 multiplied by 3 is equal to 9. Among 9 degrees of freedom, every molecule have 3 translational degrees of freedom. Okay. Now it depends upon the geometry of your compound. If your compound is linear, for example HCl or CO2, if your molecule or compound is linear, then the vibrational mode vibrational modes or vibrational normal modes or vibrational degrees of freedom will be equal to 3n minus 5 in case of linear molecule. Okay? If your molecule is non-linear like water, then we will write 3n minus 6. Okay? 9 minus 6, that will be equal to 3 for water specifically. Okay? Now, total degrees of freedom are 9, among 9, 3 are specific for translational and 3 for vibrational. Now the remaining will be the rotational degrees of freedom. Okay, remaining will be 3. Mean 3 plus 3 is equal to 6. Total are 9. 9 minus 6 will be equal to 3. Okay, so 3 degrees of freedom for rotational degree of freedom for water. Suppose you have CO2. In case of CO2, total degrees of freedom will be equal to 9. Okay, among 3 will be the translational and vibrational will be 3n minus 5 because this is a linear compound. CO2 is a linear. 3n minus 5, 9 minus 5 will be equal to 4. Okay, and remaining will be the rotational. How much? 4 plus 3 is equal to 7. 9 minus 7. 2. ओके, तो इस तरह से आप जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो वी नीड टू फाइंड इनिशियली द वाइब्रेशनल मोड्स. ओके, सो वाइब्रेशनल मोड्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस वन. इफ इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल then it will be 3n minus 5, and for non-linear molecule 3n minus 6, and you will be able to find the vibrational modes present in your compound. Okay, now whenever we have vibrational spectroscopy, whenever we are dealing with vibrational spectroscopy, we have two different concepts. One of them is the harmonic oscillator and other one is the anharmonic oscillator. Harmonic oscillator and anharmonic oscillator. Harmonic oscillator depends on the concept or basis on the concept of Hooke's law. Okay, and anharmonic oscillator does not follow or obey the Hooke's law. Two simple things. Harmonic oscillator follows Hooke's law, whereas anharmonic oscillator does not follow Hooke's law. What is Hooke's law actually?
हुक्स लॉ जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इट अप्लाइज अ सिस्टम लाइक स्प्रिंग ऑन सिस्टम लाइक स्प्रिंग। आपके पास स्प्रिंग है, आप उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो फिर वो जो जिस फोर्स के तहत वो वापस आता है दैट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और वो हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के आर इज द डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस आप उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब माइनस इंडिकेट्स कि वो फोर्स जो है इनवर्ड आपकी कर रही है। इसी तरह पर जब इससे आप एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी क्या होती है 1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है। उसी से आप एनर्जी निकालते थे। तो जो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं वो जिसमें हुक्स लॉ पे अप्लाई होता है, हुक्स लॉ की बेसिस पे काम करता है, तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और हुक्स लॉ का तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है ना आपका, तो उसमें हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लें एंड हियर जो है द एनर्जी, ओके। और ये कौन सी एनर्जी है, जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी को ले रहे होते हैं पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या वो पर सेंटीमीटर में जब आप लेते हैं तो इधर आपके पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जो ये कुछ इस तरह से बनता है, ओके। अब कहते ये हैं कि अगर आपके पास ये एक पॉइंट है ना, मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका ये बी पार्ट है, एक मॉलिक्यूल है उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, 2 एंड्स। अब आप बी को स्ट्रेच करते हैं, बस आपने वाइब्रेशन में क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं, स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं, आप बेंडिंग पढ़ते हैं, वैगिंग आप पढ़ते हैं, रॉकिंग, सीजरिंग, सारी चीज़ें। तो वो बेसिकली क्या है कि आप उसके जो बॉन्ड है उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट में चेंज लाते हैं, उसको कभी यूँ स्ट्रेच कर लिया, कभी यूँ स्ट्रेच कर लिया। तो अब अगर ये आपके पास इसको स्ट्रेच करते हैं, सपोज ये बी, हाँ जी, तो यूँ आपने इसको स्ट्रेच किया, अब ये वापस जब इस पोजीशन पे आएगा तो अगर तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करेगा। अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो ये एन हार्मोनिक की तरह बिहेव करेगा। अगर ये अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ हुक्स लॉ, मीनिंग इट इज एक्चुअली फॉलोइंग हुक्स लॉ। अब उसमें क्या है कि अगर ये उसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है आर, इक्विलिब्रियम का जो है वो इसका डिस्टेंस है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगी वो जिस तरह वहाँ पे आपने लिखी, हुक्स लॉ क्या होता है माइनस के आर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वहाँ पे ये यहाँ तक उसका वो डिस्टेंस है जो आर है, वो आगे टोटल अगर आप इसको आर कर ले, फर्ज करो अगर इसको टोटल को आर कर ले और उसमें से ये इक्विलिब्रियम निकाल दें तो ये आपका जो स्ट्रेच पार्ट है वो निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी सर, आर जो होगा वो बी और बी डैश के बीच में होगा ना प्रॉपर पूरा? जी हाँ, और आर इक्वल जो होगा वो आर से आर इक्वल से क्या होगा? अब ये देखिए इसको आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल हुक्स लॉ है आपके पास, मगर हमारा ये काम नहीं है, हमने इससे आगे जाना है। अब यही है कि इसी तरह अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बनाता हूँ आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इधर आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये इसी तरह का, और ये यूं आपके पास लेवल्स है, ठीक है। वी वाइब्रेशनल लेवल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, ये 7 और इस तरह जा सकते हैं।
ये अगर वाइब्रेशनल लेवल है तो जब कोई चीज़ लाइक सिंपल हार्मोनिक की तरह मूव करती है या वाइब्रेट करती है या उसकी वो डायनामिक्स चलती है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन, OSC, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इक्वल होती है 1/2 पाई K ओवर K क्या है? फोर्स कांस्टेंट। और म्यू क्या होता है? रिड्यूस्ड मैस। ठीक है, क्या होता है? अब अगर वो एक टू मैसेज है तो वो आपको रिड्यूस मैस निकालना आता है। अब अगर इसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, मगर जो आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लेते हैं उसमें तो पर सेंटीमीटर में आते हैं, है ना? तो उसको आप ये इसको ऑसिलेशन ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? यूँ देखिए, एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एनर्जी होती है H म्यू फ्रीक्वेंसी के, हैं? या फिर किसकी इक्वल होती है? HC म्यू बार की। अगर अब आपके पास ये ऑसिलेशन है तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? ये चीज। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ गई? H ऑसिलेशन इज इक्वल टू HC, ये कैंसिल। तो ये चीज़ आपके पास किसकी इक्वल? अब अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, वेव नंबर निकालना हो, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ये। ठीक है ना, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 पाई C। इस पॉइंट समझाइए। ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने C से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। इसका जो है ना उसकी कैलकुलेशन लेते हैं, वो प्रॉपर क्वांटम है, उसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई होती है, वाइब्रेशनल उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है। आफ्टर अप्लाइंग दैट ऑपरेटर वी हैव सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड EV, और वो क्या होती है? V प्लस 1/2 H, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने बस इतना ये रखना चाहिए। V क्या है? वाइब्रेशनल लेवल। V 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब इसके यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? जूल्स में। एनर्जी है ना, अगर मैं इसको यूं लिखता हूं, अब ये जो मैं एनर्जी लिख रहा हूं ना, ये इस तरह करके, इसको कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्कोपिक एनर्जी। और ये पर सेंटीमीटर में आएगी। ये क्या होता है? ये क्या होगा? ये देखिए, ठीक है खबर है। ये देखिए किस तरह आता है। आ सकता है कि नहीं? पर सेंटीमीटर। हाँ, ये बेसिकली ये हमने मीन कि इस चीज को आपने HC से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पर सेंटीमीटर में लाने के लिए। ठीक है, इस चीज को आपने 8 प्लांक्स कांस्टेंट C स्पीड ऑफ लाइट उस पे आपने कर दिया। और ये आपको पता है कि ऑसिलेशन ओवर C हो तो ये किसकी इक्वल होता है? और वो ये चीज आ गई, H से H कैंसिल हो जाएगा, फिर V ऑसिलेशन ओवर C बच जाएगा, वो आपके पास इसकी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम मिलता है, वहाँ पे जो नीचे पर सेंटीमीटर लिखा होता है वो बेसिकली वेव नंबर होता है। ये भी वेव नंबर ही है। ठीक है,
ये पर सेंटीमीटर में आ गई, तो उसको उन्होंने एनर्जी की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और ये देखें ना, ये फार्मूला जो होता है ना आपके पास, E इज इक्वल टू एच सी यू बार, है ना, ये एनर्जी इस तरह भी इसके इक्वल हो सकती है, E इज इक्वल टू एच सी और बार। ठीक है, तो अगर बार निकालना तो वो क्या हो जाएगा, E ओवर यही हमने काम यहाँ पे किया। ठीक है ना, पर सेंटीमीटर। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें, अब वैल्यू वाइब्रेशनल लेवल की 0 हो सकती है, इट माइट बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप इसकी वैल्यू 0 करते हैं बेटा, इफ V इज इक्वल टू वाइब्रेशनल लेवल 0 करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं होगी, ये होगी। ठीक है, अब ये 0 क्यों नहीं होती, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि उस वक्त उसकी एनर्जी जब वाइब्रेशनल लेवल है तो वो 0 ही होनी चाहिए। क्वांटम ये नहीं कहती, क्वांटम कहती है नहीं, वाइब्रेशनल लेवल बेशक 0 भी है ना, है फिर भी कुछ ना कुछ उस मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। अब बात क्लियर हुई कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो मीन कि जब ये भी आपने 0 कर दिया, वाइब्रेशनल लेवल 0 करने के बावजूद उसकी कुछ एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे पर सेंटीमीटर में ये चीज़ें लिखनी है आपने, जब 0 होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1/2 ये, है ना। जब 1 होगी तो क्या होगा, V की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये जो इसकी एनर्जी होगी ये क्या होगी, 3/2 मेगा सी। अच्छा, जब वाइब्रेशनल लेवल 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी 5/2, ऐसा ही है, जिला समझ आ गया। जब 3 रखेंगे क्या हो जाएगी 7, है ना। 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो, अगर आप देखें तो ये अगर इनका डिफरेंस है तो वो क्या बनता है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 5/2 माइनस 3/2, ये कितना बनता है 1। ठीक है ना, 2 आ गया, 2/2 क्या हो गया 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल अगर वाइब्रेशन लेवल 0 है और फिर उसके बाद 1 आता है, देन 2 आता है, 3 आता है, तो उनमें जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ ये है 1 फ्रीक्वेंसी। 1 अगला 2 3 4 5, ठीक है। तो वो बेसिकली डिफरेंस किसका आ गया 1। और इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने लेवल तक ऊपर और कितने लेवल तक नीचे जा सकता है, अलाउड। एक फॉरबिडन होता है, एक अलाउड होता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन। अब इसमें वैल्यू क्या आई 1 आई ना, तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेप ऊपर भी जा सकता है और एक स्टेप ये अलाउड है। मीन कि इसमें वाइब्रेशन लेवल का प्लस माइनस 1 सिलेक्शन रूल है, तो मीन कि ये एक स्टेप ऊपर जा सकता है, ये अलाउ नहीं है। ये भी अलाउ नहीं है, यहां से नीचे आना अलाउ है। तो इस वैल्यू से आप सिलेक्शन रूल बना सकते, ठीक। तो ये सारी एनर्जी जो आप निकालते हैं ये किसकी, ये बनती है हार्मोनिक ऑसिलेटर। मगर प्रैक्टिकली जो आपके पास रियलिटी में जो एनालिसिस होता है या जो सैंपल होता है वो इसको फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ये आइडियल सिस्टम। वो क्या करेगा, वो देखेगा, ठीक है। वो भी इसी तरह आपने बनाना है, ये बनाइए।
इंटर ये डिस्टेंस है, और इधर इसी तरह पर सेंटीमीटर एनर्जी होगी आपके पास। वो मैं बात में लिखूंगा, इधर आपको आइडिया हो जाएगा। ये तरीका अच्छा रहता है कि एनर्जी ये कहाँ से है, अब आपको पता है कि कहाँ से है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ये यूं चल रहा होता है, ये आइडियल केस है ये वाला। इसमें क्या होता है ऐसे रियलिटी में, तो इसको कहते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट होता है ना डी ई कहते हैं, ये कहते हैं ब्रेक, जब वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो इससे फिर हम ये जो है डी ई की वैल्यू आ जाती है। और उसको कहते हैं डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। इससे फिर डी ई क्यू की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे वो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। ये तो है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब उसमें स्ट्रेच हो, फोर्स कांस्टेंट हो, जो उसको फोर्स अंदर लेके, मगर हमारे यहाँ क्या होता है बाण को अगर आप स्ट्रेच करते जाए तो डिजीला क्या होगा, एक पॉइंट आके जहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो कंडीशन फिर वापस तो नहीं आ पाएगी, लिहाजा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो नहीं करेगा, वो एन हार्मोनिक को करेगा। तो इस कंडीशन में फिर एक एम्पिरिकल रिलेशन बनाया गया जिसको कहते हैं मोर्स पोटेंशियल। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, एक साइंटिस्ट थे मोर्स नाम का, उन्होंने पोटेंशियल दिया एम्पिरिकल रिलेशन दिया। एम्पिरिकल रिलेशन ये होता है जिसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो मगर वो मैथमेटिकली प्रूव्ड हो। एम्पिरिकल रिलेशन वो होता है जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो मगर मैथमेटिकली प्रूव्ड हो। वो क्या था, वो उन्होंने एक पोटेंशियल निकाला मोर्स पोटेंशियल, वो ये डी इक्विलिब्रियम मीन की डिसोसिएशन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ए, ये उन्होंने पॉइंट निकाला, ये मोर्स पोटेंशियल, ये एम्पिरिकल रिलेशन है, इसको मोर्स पोटेंशियल कहते हैं। इसी केस पे फिर फर्दर जो है उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की। अगर यहाँ पे आप लेवल बनाते हैं उसी तरह लेवल आप यहाँ बना सकते हैं, V 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो भी बनाए, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी, अब इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया आपको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है एंड व्हाट्स अबाउट एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपके पास रियलिटी में जो आपके पास सैंपल होते हैं, इसकी जो एनर्जी है वो कैसे निकालते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये था V वाइब्रेशन लेवल 1/2H। अब यहाँ पे आपने ये इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बेसिकली दिस इज कुलियन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वहाँ पे ऑसिलेशन थी कुलियन, वहाँ पे क्या थी ऑसिलेशन थी, और ये क्या है अब आपके पास माइनस ये देखिए। अब ये जो यहाँ तक जो फैक्टर है वो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, यहाँ तक है ना। अब एन हार्मोनिसिटी कहाँ अप्लाई हुई, इस पार्ट पे, और ये एच भी हुई है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये क्या है कुलियन फ्रीक्वेंसी, ये एक्स कैपिटल यू कर लिखा है आपने ऐसे ई, इसको क्या कहते हैं, ये बेसिकली एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, वो जो आता है उसको, ठीक है। इसको सब काई भी बोलते हैं, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अब इससे अगर आप ये वाली वैल्यू निकाल, इसके यूनिट्स क्या होंगे हर्ट्ज मीटर। अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं तो उसी तरह इसको h/c से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ये चीज माइनस
बेसिकली यूँ लिखा जाता है सर ओमेगा ई है ओमेगा सी ई। ओमेगा बेसिकली क्या होता है ये थोड़ा सा ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, एक लीनियर वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर में आप ओमेगा लिख रहे हैं, तो ये चूंकि ऑसिलेट कर रहा होता है तो इसलिए ओमेगा लिखते हैं। अब ये आपकी वो एनर्जी आ गई, ठीक है कि बात। यहाँ पे v अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 पॉइंट एनर्जी तो यहाँ पे भी आएगी, है ना, 0 तो नहीं होगी टोटल एनर्जी, क्या बनेगी देखो। इसके ये यूनिट्स किस में आएंगे, पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आप इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस यूनिट्स आएगा आपके, परसेंट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो एन हार्मोनिसिटी में जो आपके पास एनर्जी आई है, क्या इसको आप हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली एनर्जी के साथ इक्वल कब हो सकती है, जब ये फैक्टर 0 हो जाए, है तभी हो सकती है। और ये फैक्टर कब 0 होगा, जब ये वाइब्रेशनल लेवल -1/2 क्या हो जाए, जब ये फैक्टर 0 कब होगा, व्हेन -1/2 रखते हैं आप, तो ये पॉसिबल है वाइब्रेशनल लेवल -1/2 में जाए, नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल हो गया ना, कि आप तो उसके इक्वल मैथमेटिकली तो कर सकते हैं, वैसे वो इक्वल उसके हो नहीं सकता। तो इसीलिए कि जो आपके पास जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसी तरह इनमें फिर आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस आता है ना, ठीक है, इसमें जो आप डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, वो तकरीबन 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, वो चलता रहता है। तो इसमें जो आपके पास सिलेक्शन रूल है वो +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, इसमें सारे ऑप्शन आ सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। हार्मोनिक में क्या था कि +-1, इसमें नहीं है। तो एन हार्मोनिक और हार्मोनिक में आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया। इसी तरह से फिर आप एक लेवल से दूसरे लेवल का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ, एक लेवल से दूसरे लेवल तक का जो डिफरेंस है वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जब आपने v की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, है। जब आप v की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो क्या आएगी, करो जरा बात, ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 3/2 कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 into x. ठीक है। अब ये 1 की होगी, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये 1 की होगी, ये 2 की होगी, है। अब इसको आप लिख सकते हैं E0 और इसको आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं, जो डिफरेंस लेना है आपने वो क्या हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसका और इसका आप डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। सिमिलरली आप जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था तो वहां पे भी निकाल सकते थे इसी तरह, ठीक है ना, मान की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है पॉपुलेशन निकालने का। आपने लास्ट वीडियो देखी थी, थैंक यू। अब पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं आप, वो मैंने बताया था कि NV अपर डिवाइडेड बाई NV लोअर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, -8C क्या हो जाएगा EV के E। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, ठीक है। K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में H आपके पास जूल में होता है, प्लांक्स कांस्टेंट जूल सेकंड में, और C क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और EV ईटा V किसमें होता है, वाइब्रेशनल जो एनर्जी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी वो पर सेंटीमीटर में होती है, तो वो कैंसिल होकर ऊपर की ओर बच जाता है, नीचे की ओर, तो वो फिर कैंसिल हो जाता है। कैसे, इसके यूनिट्स क्या है, ठीक है। C क्या होता है, और ये किस में होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें ऊपर है ना, सेंटीमीटर की बस से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जोर बच गया, और नीचे जोर पर केल्विन है, टेम्परेचर की केल्विन से ये कैंसिल, जोर और जोर। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा उस चीज का लिया जाता है जो यूनिट लेस है। तो पहले आपने उसकी यूनिट लेस बनाना है, फिर उसका आपने वैल्यू निकालना है। ओके, अच्छा, जब ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, सपोज कि ये वैल्यू दी आती है, पॉइंट 3, इसका क्या मतलब है, 0.3, हाँ जी। अब ये लोअर लेवल है वाइब्रेशन लेवल, एंड दिस इज अपर वाइब्रेशन लेवल, एंड योर वैल्यू इज इक्वल टू 0.3। इसका क्या मतलब है कि इसको आप यूं लिख सकते हैं ना, 3/10 लिख सकते हैं। इट मींस यू हैव, इफ यू हैव टोटल 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 आपके अपर लेवल में होंगे और 10 लोअर में होंगे, ठीक है। तो इससे आप परसेंटेज पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 13 और 10 डिवाइडेड बाई 13, तो आपकी पॉपुलेशन निकल सकती है परसेंटेज में कि लोअर लेवल पे कितने परसेंट है और ऊपर कितने परसेंट है। टोटल कितने 13 है। अगर ये वैल्यू 1 आ जाए तो इसका क्या मीनिंग है कि अपर और लोअर में पॉपुलेशन इक्वल है, तो 1 वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू जो है ये बढ़ जाती है,
और ये भी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप, when we are going to increase the temperature, number of electrons are going to leave actually ground state. They leave the ground state and they will be there in the excited state. तो number of electrons की जो population है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हायर लेवल पे इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए ये वैल्यू भी ग्रेटर होती है। अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन देता हूँ सेम पॉपुलेशन पे, वो कुछ और वैल्यू आएगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके दे दूंगा तो वो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये है